So let us start. Okay. Good morning to everybody. So today we'll start third Karnataka War. So before this, we have already completed first Karnataka War and second Karnataka War. And uh, let me ask you some questions about first and second Karnataka War. Acha, tell me on which treaty first Karnataka War was ended? Alexa Chaplin. Treaty of Extra Chapley, Extra Chapley. Okay, then second Karnataka War. Treaty of Pondicherry. Treaty of Pondicherry. Acha, Battle of Saint Thome belongs to which Karnataka war? First or second? Battle of Saint Thome. Are Battle of Saint Thome belongs to which Karnataka war? Harsh Karnataka. First Karnataka war. It is also otherwise known as Adyar. Battle of Adiyar. Battle of Adiyar. Why first Karnataka war started? What is the ignited point? Why first Karnataka war started? Austrian successor. Because of the Austrian Succession. Austrian succession of power. Okay, Austrian power succession. Okay. Then tell me, what was the result of the Battle of Hadiyar? What was the result of Battle of Hadiyar? French. French. French East India Company won, and who defeated? Who got defeated? Alauddin. Anawardin. Anawardin. Okay. Anawardin was the regent of whom? Who? Anawardin was the regent of who? Hmm? अरे अनुवर्धन कहाँ regent थिला? French. हाँ? French. कहाँ? British. अरे regent थिला, कहाँ protector थिला? तो appointment दिया थिला. हाँ? अरे कहाँ थिला अनुवर्धन? हाँ? सादतुल्ला खान टू. अरे भूलिए जोर के रिवीजन मारनो की. अरे रिवीजन करनो ना कहीं. सादतुल्ला खान टू कैसे? कहाँ पोथिला? हम्म? अरे सादतुल्ला खान कहाँ पोथिला? असफ जही के? असफ जहा वन के? असफ जहा वन? हैदराबाद. हैदराबाद रीजन थिला. अच्छा, who is Sadatullah Khan to? Sadatullah Khan to who was Sadatullah Khan to? Who was Sadatullah Khan to? Shabdar Ali Khan. Sabdar Ali son. Who is Sabdar Ali? Hmm? Who is Sabdar Ali? Nawab Karnataki. Who is Sabdar Ali? Son of a Dost Ali. Who is Dost? Son of a Dost Ali. Sabdar Ali Khan was the Sadr Ali Khan was the son of a Dost Ali. Who is Dost Ali? Ghulam Ali's son. Who is Ghulam Ali? Brother of Sadatullah Khan one. अरे बुझा पड़छ ना नहीं. ऐसो मन रखो ना जहाँ जहाँ करथिला टिके टिके मन रखो न गले केम हिस्ट्री तो टिके अपहाय मन रखिया पड़िबो कोन करिबा. अच्छा मते को बैटल ऑफ अंबर का भितर हेतिला. बैटल ऑफ अंबर. बैटल ऑफ अंबर को फर्स्ट कर्नाटक ना सेकंड कर्नाटक वार. बैटल ऑफ अंबर सेकंड कर्नाटक वार का भितर हेतिला. का भितर हेतिला. And the airport. फ्रेंच टीम आगे का भितर हेतिला. British. French and British. फ्रेंच अनवरुद्दीन भितर हेतिला. अनवरुद्दीन हारी गला बैटल ऑफ अंबर रे हारी गला ताको डिफीटेड एंड किल्ड आल्सो. हैला सो मन रखिबो ना. नॉर्दर्न श्रीकर्स रे जो चारिटा डिस्ट्रिक्ट आछे आंध्र कोन कोन. नॉर्दर्न श्रीकर्स. मुस्तफानगर, एल्लोर, राजमुंदरी आउ चिकाकोल.
କିଛି କରିପାରୁନରେ। ଆଚ୍ଛା, ହୁ ରିପ୍ଲେସ୍ଡ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ଇନ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଟିମ୍? ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ କିଏ ରିପ୍ଲେସ୍ କଲା? ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ଜାଗାରେ କିଏ ଆସିଲା? ହୁଁ? ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ଜାଗାରେ କିଏ ଆସିଲା? Duplex or who came in place of duplex? Who came in place of duplex? In Gade, Hmm? Godeyu. Godeyu. M. Gade. Heading the third corner के बाद देखो जितने बजे आप पढ़ाओ तो रिवाइज कर चल ଏବେ ତ ଅଳ୍ପ ପଢା ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଟୋଟାଲ ପଢା ହେଇଯିବ ଯେତେ ରିଭିଜନ କରୁଥିବ ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନି ବନି ଯାଉଥିବ ତମ ପାଇଁ ଟାଇମ ଅଛି ବୋଲି ଢିଲା ମାରିଲେ ହବନି କିଛି ହେଲା Sir, ये जो second comedy हुआ है वो जो 14 साल का सॉन्ग जो सर सब कहार କଣ କଣ ସାଦା ତୁଲା ଖାଇବା ହଉଛି ସେ ଯୋଉ ଦୋସ୍ତ ଅଲିର କଣ ଯୋଉ ସନି ନୀଳ ହେଲା ଚନ୍ଦା ସାହି ତ ହଁ ହଁ ସେ ହେଲେ ଯୋଉ ଡାଇଗ୍ରାମ କରୁଛୁ ମାନେ ସେ ଦୋସ୍ତ ଅଲି ସିଧି ଦୋସ୍ତ ଅଲିରୁ ଆସିବ ଚନ୍ଦା ସାହି ଆଉ ଗୋଟେ ହବ ସଫଦର ଅଲି ଖାନ ହଁ ହଁ ଦୋସ୍ତ ଅଲି ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ନା ଚନ୍ଦା ସାହେବ ସନ୍ ଇନଲ ଆଉ ସଫଦର ଅଲି ଖାନ ତାଙ୍କ ସନ୍ ଡ୍ର କରିନ କି ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଡ୍ର ସାହି ହଉଛି ଡ୍ର ସେ ସଦା ତୁଲା ଖାନ ମା ଲେଖା ହେଇଛି ତା ତଳକୁ ଚନ୍ଦା ସାହି ସନି ନୀଳ ଅଫ ଦୋସ୍ତ ଅଲି ତାପରେ ସଫଦର ଅଲି ଖାନ ସନ୍ ଅଫ ଦୋସ୍ତ ଅଲି ସେଇଟା yes yes ଦୋସ୍ତ ଅଲିର ଅଛି ନା ହଁ yes yes ହେଲା ମାନେ after Sadat Ali Khan, Dost Ali became the Nawab. Sadat Ali Khan ପ୍ରଥମେ ହେଇଥିଲା ନା ତ Dost Ali କିଏ ଗୁଲାମ ଅଲିର ପୁଅ ଗୁଲାମ ଅଲି କିଏ ସଦାତ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନର ଭାଇ କାରଣ ସଦାତ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ ୱାନରେ କିଛି କେହି ନଥିଲେ ପୁଅ ନଥିଲା କି ତା ଭାଇର ପୁଅକୁ ସେ ହାୟାର କରିଥିଲା ବା ତାକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଆଚ୍ଛା ନାଉ କମ୍ ଟୁ ଦ ଥାର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର ଓକେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ କଣ ପଢିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ କୁ ଡକା ହେଇଯାଇଛି ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ୱାଜ ରିକଲ୍ଡ from the French government and French government decided actually what happened in Gingy Fort. Gingy Fort was very pathetic for what? Not Gingy Fort, Trichunapalli Fort. Trichunapalli Fort. Trichunapalli Fort ରେ କିଏ ଥିଲା କିରେ? ୱାଲାଝା ଏରା ସବୁ ମନେ ପଡୁନି ୱାଲାଝା ଫଲାଝା ଆଉ ଭିତରକୁ ଯାଉନି ଏରା ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିକି ଯାଅ ଏଟା ଏବେ ରିଭିଜନ କଲେ ହିଁ ମନେ ରହିବ ରିଭିଜନ ନ କଲେ ଏଟା ଠିକ ସେ ଭୁଲିଯିବ ପୁଣି ଏବେ ତ ଟିକେ ଏବେ ପଢା ହେଇଛି ମନେ ରହୁନି ପୁଣି ସବୁ ପଢା ହେଇଯିବ କେମିତି ମନେ ରହିବ ହେଲା ଏବେ ଯେତେ ରିଭିଜନ କରିବ ସେତେ ଏଟା ଆରାମସେ ମନେ ରହିବ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ମେମୋରି କି ପଳେଇଯିବ ଆଚ୍ଛା ନାଉ କମ୍ ଟୁ ଥାର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ୱାର ଥାର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ୱାରରେ ଥାର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ୱାର थर्ड कर्नाटक वार ओके तो डुप्लेक्स वाज रिप्लेस्ड बाय कैसे रिप्लेक्स वाज रिप्लेस्ड बाय Gadeyu, Godeyu. was replaced by Godeyu ହେଲା डुप्लेक्स was replaced by Godeyu as कौन गवर्नर जनरल ऑफ फ्रेंच आईसी as गवर्नर जनरल ऑफ फ्रेंच आईसी ऑफ फ्रेंच आईसी ओके तो जो गोडेयू ये हमर थिला देखो ये केतरु केते होला ये तो काकु डका याकु होला टिटिओ पंडितरी साइन करको पठाइतलो तो जाकी शांति वार्ता साइन करता सहित अक्टोबर बहुत कम समय रहला अक्टोबर केते 1754 रु अक्टोबर 17 अक्टोबर 1754 टू 1755 okay 1754 to 1755 4 months only 4 months so actually basically he was sent to India to just settle the issues ମାନେ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ଦେଖିଲା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଗଲା ସିଚୁଏସନ ତ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସକୁ ଡାକିଲା ପରେ ଗୋଡେଉ ଆସିଲା ସେଟଲ କରିବା ପାଇଁ ଜିନିଷ କାହା ସହିତ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ହେଲା ତେଣୁ ଟ୍ରିଟି ଅଫ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ସାଇନ୍ ହେଲା ତେଣୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଡେଉ ତାପରେ ଗୋଡେଉ ବୋଧେ ଏତେ ଭଲ କମାଣ୍ଡର ବି ନଥିଲା ଏତେ ଇଏ ବି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ପଠାଇଥିଲା ଯେ ୟୁ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ସେଟଲ ଦ ଇସ୍ୟୁଜ ଦେୟାର ହେଲା ତେଣୁ ଗୋଡେଉକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ କାମକୁ ନୁହଁ ତ ଗୋଡକୁ ରିପ୍ଲେସ କଲେ ଗୋଡେଉ ଜାଗାରେ କିଏ ଆସିଲା ଲେରିଟ ତାପରେ देखो Godeu was replaced by Lerit as the new Governor General of French EIC ये रहिला 1755 जाए तापर गोडेयू
Godehu was replaced by क्या करे लेरिट, हाँ, Leyrit, लेरिट, as the new Governor General of Ley, Lerit, as the new Governor General of French EIC, of कौन करे फ्रेंच EIC, न्यू गवर्नर जनरल ऑफ फ्रेंच EIC, ये केते रहला लेरिट, या लेरिट रहला 1755 ना 1755 ରୁ 1758, 1755 ରୁ 1758, ये भी कौन थिला, ये भी काफी थिला हला। लेरिट भी काफी भल कमांडर थिला, तेणु कंपैरेटिवली गोडेउड तो भल थिला, गोडेउड को दक्षता भल थिला, स्किल भल थिला, लेरिट को सेति पठैथिले, बुझियोछि। तो आमे कहबा जे सर तुम कहबे सर तो फास्ट कर्नाटिक वार तो ठीक अछि, ट्रीटी ट्रीटी ऑफ एक्स्ट्रा चापले जरा बंद हला, सेकंड कर्नाटिक ट्रीटी ऑफ पॉन्डिचेरी रे बंद हेतिला, पुनी कोन हला काहे कि पुनी एटा हला काहे खेला ना, पुनी यूरोप रे स्टार्ट हे गेला 7 इयर्स वार स्टार्ट हे गेला यूरोप रे हला। यूरोप रे 1756 मसिया रु 7 इयर्स वार स्टार्ट हे गेला। पुनी फ्रेंच को ये कोन फ्रेंच और इंग्लैंड अपोजिट साइड रे रहले हला, सेटा लेखो, पुनी तार इंपैक्ट इंडिया रे पड़ला कौन है, देखो देखो इन यूरोप कौन है ना, इन 1756 7 year war started, 7 year war started ହେଲା, 7 year war started and स्टार्ट हो गला। तो कौन है ना यही समय चंदरनगर थिला फ्रेंच फैक्ट्री थिला, चंदरनगर जानते तो कोठी बिहार बेंगल रे, बेंगल प्रोविंस रे चंदरनगर लेख कौन कहा हेतिला ना, चंदरनगर 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 एटा कौन थिला ना पार्ट ऑफ बिहार प्रोविंस थिला, पार्ट ऑफ बिहार सॉरी बिहार बेंगल प्रोविंस, बिहार भी तो बेंगल प्रोविंस अंडर आस्तला, बेंगल प्रोविंस अंडर थिला। एटा फ्रेंच फैक्ट्री थिला चंदरनगर रे, कौन थिला फ्रेंच फैक्ट्री, फ्रेंच फैक्ट्री थिला चंदननगर रे हला। तो ब्रिटिश ईआईसी कौन कला ना, जेहेतु सेठी 7 ईयर वार स्टार्ट हे गला कोठी कोठी रे यूरोप रे 1756 मसिया रे मसिया ठो आरंभ हो गला, 7 ईयर वार स्टार्ट हे गला। तो तार इंपैक्ट रे कौन कले ना ब्रिटिश ईआईसी चंदननगर को अटैक कला हला। तो कौन कला ना ब्रिटिश ईआईसी प्रथमे, ब्रिटेन साहस बढ़ी जाइछि ना, ब्रिटिश ईआईसी कौन कला अटैक चंदननगर, चंदननगर पाखे जो फ्रेंच फैक्ट्री तो अटैक कला। ब्रिटिश ईआईसी अटैक कुआ जाय जे चंदननगर जो फ्रेंच फैक्ट्री था मेन सेंटर थिला सेटा, अटैक चंदननगर, चंदननगर रे जो फ्रेंच फैक्ट्री अछि सेठी अटैक कला हला। फ्रेंच फैक्ट्री चंदननगर अछि सेटा को अटैक कला। समय केते थिला ऑन 23 मार्च, ऑन 23 मार्च 1757, 1757 ओके 1757 23 मार्च 1757 रे अटैक कला, बुझियो छी। तो एक्चुअली कौन ना पूर्वरु जते 1668 मसिया रे माने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जे प्रथम डायरेक्टर थिले से ही एटा मुगल मानन को 40,000 टंका दे की किनिथिले, माने रेंट रे आनिथिले बा ताको गुड टाइप रो हम कहबा जे एटा कौन ना दे की ताने रीजन ता ताको पतर कंट्रोल आनिथिले, माने से फैक्ट्री बनिया पाए। ए लिखि दे पारो इन 1688, ए लिखि दे पारो इन 1688 the first director of a French EIC, the first director of a French EIC, French EIC, okay, French EIC had paid केते करे had paid 40,000 coins, 40,000 coins
COINS 40,000 coins to Mughal Subedar. To କାହାକୁ? To Mughal Subedar. এই ସମୟରେ ବେଙ୍ଗଲର ଯିଏ ସୁବେଦାର ଥିଲେ ମୁଗାଲର, ଟୁ ମୁଗଲ ସୁବେଦାର। मुगल सुबेदार मुगल सुबेदार ऑफ द रीजन से रीजन ऑफ द रीजन टू गेन द कंट्रोल ऑफ कौन चंदननगर टू गेन द कंट्रोल ओवर कौन कि ओवर चंदननगर कंट्रोल ओवर चंदननगर बुझेला। आउ आमे भी जो देखिबा डुप्लेक्स को टाइम रो भी चंदननगर गोटे मेन सेंटर थिला कार फ्रेंच मानकर हला एटा लिखि दे पारो फ्रॉम डुप्लेक्स टाइम डुप्लेक्स माने डुप्लेक्स गवर्नर थिले टू 1717 रे स्टार्ट हेला युद्ध 17 अटैक ले माने 1756 रे तो अप टू डुप्लेक्स को टाइम आरंभ करी 1756 पर्यंत चंदननगर बिकेम द मेन सेंटर ऑफ कौन करे चंदननगर became the main center for commerce in Bengal. Main center Chandernnagar became the main center of commerce for the French FRENCH ତାଙ୍କର main ଥିଲା main center ଥିଲା ସେଟା ତେଣୁ ବୁଝିଯାଉଛି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆଟାକ୍ କରାଗଲା ତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ କୁ ଆଟାକ୍ କଲେଣି ଏଠି ତ ସେଠି ଭାବିଲେ କି କାରଣ ଚନ୍ଦନନଗରଟା ତାଙ୍କର ମେନ୍ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର ମେନ୍ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା କୋଉଟା ଚନ୍ଦନନଗର ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସବୁ ସେଠି ଥିଲା ତ ଚନ୍ଦନନଗର କେମିତି ଆଟାକ୍ କଲେ ଲାରିଟ୍ ଥାଇକି ବି ଆଟାକ୍ କଲେ ତ ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଲାରିଟ୍ ବୋଧେ ପାରୁନି ଲାରିଟ୍ ବୋଧେ କାମକୁ ନୁହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଲାରିଟ୍ ଜାଗାରେ ସେ ଆଉ ଜଣେ ଭଲ କମାଣ୍ଡର ଦେଖିକି ସ୍କିଲ୍ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତା ଲାଲି ତାକୁ ପଠେଇଲେ ହେଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ନା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଫ୍ରେଞ୍ଚ କଣ କଲା ଲାରିଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳୁନି ହେଲା ये बर्तमान माने लोड नहीं पारुनी लारिट तो बर्तमान ताको चेंज करया पड़े तो फ्रेंच गवर्नमेंट कोन कला देखो फ्रेंच गवर्नमेंट realized that to make their position strong there is a need to change the governor general of there is a need to change the कौन to change the governor general to change the governor general of कौन फ्रेंच GIC तो এটা কোন হলো দেখো না যেতে লেখালো ফ্রেঞ্চ গভর্নমেন্ট রিয়েলাইজড টু মেক देयर पोजीशन स्ट्रांग देयर इज ए नीड टू चेंज द गवर्नर जनरल ऑफ फ्रेंच आईसी एमन लागिला जेते चंदननगर को अटैक कले ये लागिला जे लारी द्वारा वर्तमान काम होउनी ताको चेंज करे को पड़िबो हला तो लारी को के रिप्लेस करे वर्तमान ता जगह लाली आसीबो हला न्यू गवर्नर जनरल तो लिखो इलेक्शन रे बडा एटा सरला तो ओके तापर लिखो नाउ इन प्लेस ऑफ लारिट लाली विल कम द न्यू गवर्नर जनरल तो बर्तमान कौन हला ना बर्तमान देखो जे लारिट वाज रिप्लेस्ड बाय लारिट LEYRIT लारिट वाज रिप्लेस्ड बाय के लाली LALLY
as the new Governor General of French EIC, as the new Governor General, new Governor General of कौन of a French EIC, French EIC, you got it ना, French EIC. तो बर्तमान गवर्नर जनरल किए ହେଲା अरे किए रे लेरिट गला बर्तमान तार लाली हाँ ओके सो तो लाली कौन से चंदननगर को अटैक कले तो ये कौन कला ना आंकर कैडलोर रे को फोर्ट कौन थिला कि रे ब्रिटिश मानकर हाँ अरे कैडलोर रे कौन थिला अरे को फोर्ट थिला फोर्ट सेंट डेविड किसी मन रखुन तुम बोधे रिविजन करो सो लाली अटैक कौन कला लाली आसला लाली अटैक कला जाई कोठी की लाली अटैक फास्ट कौन अटैक फोर्ट कौन फोर्ट सेंट डेविड एटा कोठी एटा कोठी कि रे कैडलर रे कैडलर कोठी अरे कैडलर कोठी अरे कैडलर कोठी मो कर्नाटक रीजन रे कैडलर आमे जो सेकंड वार पड़ला हम कहि नथली अरे सेकंड आंग्लो जो हमर कर्नाटक वार पड़ला हम कहि नथली मद्रास कर्नाटक पांडिचेरी कराईगल एरा सब कहि नथली हां अरे कैडलर कथा मने पड़छि सेंट डेविड कथा तो समस्त प्रेजेंट अछि ना नहीं हो तो लाली अटैक कौन फोर्ट सेंट डेविड दैट इज कैडलर रे हां बता कौन है नाउ फ्रेंच ईआईसी कौन कला ना कैप्चर द फोर्ट सेंट डेविड तेणु सेंट डेविड को कैप्चर कला परे कैप्चर करला सो कौन लाली अटैक फोर्ट एंड कैप्चर्ड इट हैला एंड कैप्चर्ड माने सेंट डेविड को कैप्चर कले हैला तापर कौन नाउ द टारगेट वाज फोर्ट सेंट जॉर्ज बर्तमान कौन हबो कैडलर सरला नाउ कौन मद्रास को जीवा नाउ द टारगेट वाज कौन कि रे फोर्ट सेंट जॉर्ज बुझेला फोर्ट सेंट जॉर्ज एट मद्रास बुझेला तो बर्तमान मद्रास को अटैक करे टारगेट कले हैला किंतु कथा हला सेते बेलको भी कारण यार यूरोप रे युद्ध चली यूरोप रे को वार चली करे यूरोप रे बर्तमान को वार चली 7 इयर्स वार यूरोप रे चलछि बर्तमान यूरोप रे 7 इयर्स वार चली हैला सेपटे कोन हिची ना यूरोप रे 7 इयर्स वार चली तो सियाड़े वार चलला माने पैसा पत्र लागबो ना तो आमन के फाइनेंशियल कंडीशन भी फ्रेंच मानकर भलो नै किंतु एटा केते मसियार कथा एटा अरे केते 1757 मसियार कथा किंतु एही समय रे कोन हिची ना देखिबो 1757 रे पल्लासी वार पड़िबा पल्लासी वार मन अछि तो 1757 रे पल्लासी वार ब्रिटेन में जीती गले तो बेंगल तांको अंडर को पळे आसला बेंगल ला हिसाब रे बहुत प्रॉस्परस एरिया थिला तेनु अपेक्षाकृत भाव में ब्रिटिश ईस्ट कंपनी फाइनेंशियल कंडीशन भलो थिला बेंगल पाई जेतु बेंगल तांको अंडर को पळे आसथिला तो फॉर दैट रीजन देयर कंडीशन वाज गुड बेंगल कंडीशन से समय भलो माने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंडीशन भलो थिला कंपैरेटिवली फ्रेंच मानक तेणु ब्रिटिश कौन है जो बेंगल जो इन गुड पोजिशन थिला बेंगल पाई अपेक्षाकृत भाव में पोजिशन भलो थिला तेणु एमाने कल ना डिसेंबर 1758 रे लाली जाई कौन कला ना सीज कला मद्रास को हला किंतु इंग्लिश रिसीव्ड कौन बेंगल रु काफी इन्फोर्समेंट आसला सोल्जर माने आसिले हला रीइन्फोर्समेंट बेंगल रु काफी तांको साहाय्य मिलला फल रे कौन हला ना से माने जो सीज करथिला तो ताको कोन ब्लॉक कर देले माने जो सीज करथला जाई कि ताको ब्लॉक करले त माने एते सक्सेसफुल हेई पारलानी के से लाली सेरा सो लेख पुणे कान स्टोरी मन न रहबो लिखले एटा लिखले नाउ टारगेट वाज फोर्ट सेंट जॉर्ज हला it like but the financial condition of French not good due to the war से like financial condition फाइन एरा सब प्रीलिम पे दरकार खाली हला फाइनल टिकट खाली पढ़ लिखि देथो फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अ फ्रेंच not good due to war एरा not good due to war वार है तो अगर फाइनेंशियल कंडीशन भलो थिला कि भलो नथिला किंतु माने भी वार रो शिकार हितले ब्रिटेन माने भी शिकार हितले किंतु ए जो बेंगल को से समय अंग अधीन को पळे आस्थिला कि अंग कंडीशन भलो थिला लेख ब्रिटिश फाइनेंशियल कंडीशन वाज गुड
financial condition of a condition British was कौन was good as good due to the acquire of कौन Bengal due to the acquire of Bengal acquisition of Bengal जा लिखियो AC acquisition of Bengal due to the acquisition of Bengal बुझेला आफ्टर कौन बैटल ऑफ पलासी आफ्टर बैटल ऑफ पलासी हम बैटल ऑफ पलासी आपरे पढ़िया बैटल ऑफ पलासी PLASSEY बैटल ऑफ पलासी है तो बैटल ऑफ पलासी पर तो बेंगल तांको अंदर को पलाय आस्थिला तो आंकर कोन फाइनेंशियल कंडीशन भलो थिला तेणु कौन हला तथापि भी एते फ्रेंच रो भलो न थाई कंडीशन विषय माने इन कोन डिसेंबर 1758 लाली कोन सीज्ड मद्रास लाली जाई कोन गला बीसीज्ड SEIGED सीज्ड कोन मद्रास को जाके सीज कला तो आर उपरांत कौन हला किंतु ब्रिटिश को एमान को कोन मिलिला ब्रिटिश ईस्टर्न कंपनी को बर्तमान बेंगल रु सपोर्ट मिलला जेतु बेंगल ता काफी प्रॉस्परस एरिया से थिला बेपुल काफी रीइंफोर्समेंट मिलला लिखि दियो बट इंग्लिश रिसीव्ड रीइंफोर्समेंट फ्रॉम बेंगल बट इंग्लिश माने ब्रिटिश ईस्टर्न कंपनी इंग्लिश रिसीव्ड reinforcement reinforcement from Bengal ହେଲା reinforcement from Bengal ତେଣୁ 1759 ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କଣ କଲେ ତାଙ୍କର ସିଜ ହଟେଇଲେ ପାରିଲେନି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାମାନେ ତାହେଲେ ଲାଲି वाज फोर्स्ड लाली तापर कौन ना लाली was forced है to raise the siege of Madras in केते 1759 in 1759 ओके तो बाध्य हले किंतु कथा हला जे ब्रिटिश कहले बर्तमान हमको कोन करबा गुटे चखमा दबा गुटे न सिखेले माने मानिबेनी तो माने बहुत साहस बढ़ी जाउछ नले तेनु माने कोन करले ना ब्रिटिश वाले प्लान बनेले कोन बनेले ना से कहले नाउ विल टीच लेसन काको माने फ्रेंच वाला कारण से मानकर पोजीशन टे भलो अछि ना हजार तो पोजीशन भलो अछि नो डाउट तो कोन ये करिवो तेनु सने कोन करले बर्तमान देखो नाउ British thought to teach the French a lesson. Now British thought to teach a lesson to French. To teach a lesson to French. तो कौन कले माने 22 जनवरी दिन हला बैटल ऑफ वांडीवास टा बहुत इंपोर्टेंट गोटे एरिया तो बहुत थर क्वेश्चन आसलानी बैटल ऑफ वांडीवास कारण आ पर फ्रेंच मान अस्तित्व लोप पाई गला तो बैटल ऑफ वांडीवास हला केते इन 2 जनवरी 1959 इन 2 जनवरी 1959 बैटल ऑफ वांडीवास बैटल ऑफ 59 ना 60 रे 60 बोधे लिखि दबो इन 2 जनवरी 22 जनवरी 1759 ना 60 बोधे 60 टा देखियो टिके 60 बोधे 1760 बैटल ऑफ वांडीवास हला कोन बैटल ऑफ वांडीवास हला वांडीवास कोन ना वांडीवास गोटे जगह होउची ई वांडीवास होउची आकर प्रकृत ना होउची माने कोन कहला प्रकृत ना होउची बंदीवासी हला एटा तमिलनाडु रे गोटे जगह माने कर्नाटक एरिया रे ता ना होउची बंदीवासी को इंग्लिश लोक मान उच्चारण करि परनले ठीक रे माने वांडीवास कहते तेनु आम लोक तो भकुआ से जहा कहबे तांग अनुसार मन रखिबे
ବନ୍ଦିବାସୀ ଏ ଜାଗା ନାଁ ହଉଛି ବନ୍ଦିବାସୀ। ବନ୍ଦିବାସୀଟାକୁ ଇଂଲିଶ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ୱାଣ୍ଡିୱାସ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁନଥିଲେ ଠିକ ସେ, ତେଣୁ ୱାଣ୍ଡିୱାସ୍ କହୁଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଦେଖା ଦେଖି ଏମାନେ ବି ୱାଣ୍ଡିୱାସ୍ କହିଲେ ସବୁ। ତେଣୁ ଆର ପ୍ରକୃତ ନାଁ ହଉଛି କଣ, ଏଇ ଜାଗାଟା ନାଁ ହଉଛି ଏଇଟା କଣ ନା, ଏଇଟା ୱାଣ୍ଡିୱାସ୍ ଟା କୋଉଠି ଥିଲା, ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ କୋଉଠି ଥିଲା, ୱାଣ୍ଡିୱାସ୍ ବା ବନ୍ଦିବାସୀ ଯୋଉ ଜାଗାଟା ସେଠି ହେଲା। ଟୁକ୍ ପ୍ଲେସ୍ କୋଉଠି, took place at a Wandiwas, that is कौन बंदीवासी, बंदीवासी बुझिल। It is a place in Karnataka region, it is a place in Karnataka region, in Karnataka region ହେଲା, it is a place in Karnataka region ବୁଝିଲ, place in Karnataka region and is କେତେ 100 kilometer north of Madras, and is 100 kilometer north of कौन किरे, north of Madras ଆଜିର ଯୋଉଟା ମାଡ୍ରାସ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେନ୍ନାଇ ହେଲା, ଚେନ୍ନାଇ ଠୁ କେତେ ଏଇଟା 100 କିଲୋମିଟର ନର୍ଥ। ସେ ଜାଗା ଥିଲା ବନ୍ଦିବାସୀ, ସେଟାକୁ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ୱାଣ୍ଡିୱାସ୍, ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେହେତୁ ବ୍ୟାଟେଲ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ତା ନାଁ ଅନୁସାରେ କୁହାଉଛି କଣ, ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ୱାଣ୍ଡିୱାସ୍। ତ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ୱାଣ୍ଡିୱାସ୍ ରେ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ୍ ରେ ଇଂଲିଶ, ବୁଝିହଉଛି। ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ୱାଣ୍ଡିୱାସ୍ ରେ ଲେଖ, in the battle of Wandiwas, Sir Erikote was leading the British EIC. Sir Erikote Erikote CO कौन गिरे, CO डबल ओ बोधे, COOT कोटे, एरिकोटे। सर एरिकोटे was leading, एरिकोटे काहाକୁ लीडिंग करथला, एरिकोटे लीडिंग करथला ब्रिटिश EIC को एरिकोटे लीडिंग करथला हला, माने ये तांकर जनरल थिला EIC हला, ब्रिटिश EIC माने ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये थिला, एंड लाली काहाକୁ, लाली लीडिंग कर फ्रेंच साइड, एंड लाली was leading को साइड रे, फ्रेंच साइड, यू गॉट इट, बुझा पड़ला। पसारे बदी वांडिवास कहा भीतर रहितला, ब्रिटिश और फ्रेंच भीतर रहितला। ब्रिटिश रे के लीड करथले, आ ब्रिटिश को के लीड करथले, ब्रिटिश को के लीड करथला, एरिकोटे लीड करथला ब्रिटिश को, और फ्रांस को कैसे, लाली, फ्रांस को लाली लीड करथला, और एरिकोटे लीड करथला ब्रिटिश को हला, एरिकोटे लीड करथला ब्रिटिश को, एवं फ्रांस को लीड करथला कैसे, ये करे लाली। तो परिणत कौन है ना, आर रिजल्ट रे कौन है ना, फ्रेंच माने हारी गले हैला। लेखो तापरे कौन है ना, फ्रेंच EIC was defeated, फ्रेंच EIC माने ईस्ट इंडिया कंपनी was defeated, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी was defeated, and after this British EIC captured other French settlements हैला। after this British EIC कौन गला करे, British EIC captured other French settlements in India, that is Pondicherry, Mahe, Karaikal, that is Pondicherry, Mahe and कौन कराईकाल है, ठीक है। बर्तमान पंडिचेरी, माहे, कराईकाल एगुड़ा सब सेटलमेंट किए अक्तियार कला कि फ्रेंच सेटलमेंट बर्तमान को जगह पंडिचेरी, माहे, कराईकाल, पंडिचेरी, माहे और कराईकाल। एंड लाली वाज इम्प्रिजन्ड, लाली की गले बंदी करके रखले बर्तमान लेख,
and Lally was imprisoned. And Lally was imprisoned. Lally was imprisoned. Imprisoned. Now French EIC was completely out of the game. ହେଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲା now French EIC was completely out of the game. आउट ऑफ द गेम कौन लगे बर्तमान कौन है देख तो लाली तो प्रथम अटाक करथिला कोन सेंट डेविड को कैडलर रे तापरे जेते जाके सीज कला मैड्रास को सेते माने कोन कले अटाक रिवर्स अटाक कले कि ब्रिटिश आईसी आ सेही समय जेतु फ्रेंच मानकर इकोनॉमिक कंडीशन ते भलो नथिला कि एमानकर भलो थिला काहे कि ना पलासी वार 1757 हेतिला तो पलासी वार पर माने जीति गले पलासी वार ब्रिटिश लोक माने आ जीति गला पर सेठी ता बेंगल तांको अधीन को पळै गला तो काफी तांको फाइनेंशियल से सपोर्ट मिल गला बुझित्र नै तेणु एमती है माने कौन माने माने ब्लॉक करदेले माने ये को सीज करबा को देलेनी मैड्रास को तेणु एरी गोटे बाध्य कि कौन कले ना सीज हटेले तेणु ये भाबिले चकमा दबा गोटे मानकू तो से भाबी कि से वांडीवास जगह रे पुनी बैटल हैला 22 जनवरी 1960 रे वांडीवास जगह रे हैला तो वांडीवास गोटे जगह होची कोन चेन्नई ठू बा मैड्रास ठू उत्तर आड़ी कि नॉर्थ आड़ी कि केते केते किलोमीटर 100 किलोमीटर तो वांडीवास जगह जो लड़ाई हैला माने युद्ध हैला गोटे पट साइड रे फ्रेंच गोटे पट साइड रे इंग्लिश फ्रेंच को जे लीड करथला ता नाउ लाली और इंग्लिश साइड को जे लीड करथला ता नाउ एरिकोटे को लाली भीतर युद्ध हैला फ्रेंच माने हारी गला परे कुआ जाय जे बैटल ऑफ वांडीवास ता गोटे निर्णायक युद्ध थिला जहा पर कि एमानकर पूरा एक छत्र हो गेले केसे कारण कोन सिंग यूरोपियन पावर रहले फ्रेंच माने आगुर तो हटि जाइतिले केसे पोर्तुगीज तापर डच माने भी हटि जाइतिले मार्कंड वर्मा आरंभरे कि पढ़ी देथिले मालेशिया इंडोनेशिया जाई सेटलमेंट एटे बनेइथिले तेणु केवल जो फ्रेंच को ईस्ट इंडिया कंपनी दिटा मेजर कंपनी रहि जाइथिला यूरोपियन पावर तो वर्तमान फ्रेंच माने को अस्तित्व हरैले आउट ऑफ द गेम नाउ कंप्लीटली आउट ऑफ द गेम तापर कोन लास्ट 63 बेल को 7 वार ऑफ जो ब्रिटेन रे 7 इयर्स वार चलछे से बंद हो गेला लेखो इन 1763 in 1763 ହେଲା 7 years war ended in Europe 7-year war ended in Europe ହେଲା ended in Europe तो एटा कोन हला तापर को ट्रीटी साइन ट्रीटी ऑफ पेरिस हला बर्तमान कोन साइन हो गरे ट्रीटी ऑफ पेरिस बर्तमान साइन ला ट्रीटी ऑफ पेरिस बर्तमान साइन हबा ट्रीटी ऑफ पेरिस TREATY ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हला बर्तमान केतेटा समय थिला 1763 मसिया ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हला तो एज पर द ट्रीटी ऑफ पेरिस कोन हबा ना जे जा सो जीति से फेरे देबे जे जो हला देखा एज पर द ट्रीटी ऑफ पेरिस as per the treaty of Paris as per the treaty of Paris कौन है लगे Great Britain and France had to return much of the territory that they had captured है Great Britain बा Britain खाली लो Great Britain कौन Britain and French had to return much of the territory that they had captured बुझेला से कैप्चर करथिया कोन माने फेरे देले परस्पर को फेरे देबे माने कैप्चर करते एई समय ड्यूरिंग 7 वार ड्यूरिंग केते करे ड्यूरिंग 7 इयर्स वार ड्यूरिंग द 7 इयर्स वार जो होइतिला एई दरवान बा एई समय जे जहार टेरिटरी अक्यूर करछंदी तो सेडा सब परस्पर को फेरे देबे बोल तांकर चुक्ति हला तेणु ट्रीटी अनुसार मैंने फेरी देले जो कराई काल माहे पंडिचेरी जो अख्तियार करथिले फ्रेंच को ये फेरी देले से तांकर जातिला फेरी देले ए लेखो as per the treaty
आज पर द ट्रिटी कौन हला देखो आज पर द ट्रिटी as per the treaty कौन हला ना पौंडीचेरी कराईकल एंड माहे were कौन restored to the French East India Company as per the treaty पौंडीचेरी कराईकल कराईकल माहे एंड कौन माहे were कौन were restored to the French were restored to the French under the protection French restore करला किंतु पुनी कौन रहला ना under the protection of कौन under the protection of British under the protection of British कहबार माने हला under the protection of कौन कि ब्रिटिश कारण एमाने कहले जे वर्तमान देख तमे किसी सैन्य फन्य रखि परिबन ब्रिटिश वाला माने तुमको फेरी तो ठीक अछि नियो किंतु तमे खाली शांति रे बिजनेस करिबो रहि ना तमे कोनसी फोर्टिफिकेशन करिवो कोनसी दुर्ग फुर्ग की फैक्ट्री बनेइबो ना किसी तमे एठी कोन करिवो ना ना तमे किसी फोर्टिफिकेशन करिवो ना तमे तोर सैन्य रखिवो सोल्जर किसी रखिबन तमे आमे सब तुमको प्रोटेक्शन दबो तमे एठी रहि शांति रे खाली बिजनेस कर तोर आ किसी काम नै एठी तेनु से कोन करले ना French landed under the protection of a British under the protection of the British. Now French EIC cannot fortify. Now French EIC. Now French EIC cannot fortify. मतलब दुर्गपुर की निर्माण कर पाएंगे cannot fortify or cannot keep troops or cannot keep troops hello cannot keep troops to safeguard them hello can only trade तो ना और कौन काम ना can only कौन can only trade peacefully peacefully FULLY can only trade कौन peacefully तेणु एमान कहले तुम बर्तमान कितना फोर्टिफिकेशन करिवो ना सैन्य रखिवो ना किछि करिवो तुम खाली एठी बिजनेस करबो जदि रहो आ तुम किछि कर परिबो एठी तो बैटल ऑफ वांडी वाज एस्टैब्लिश्ड कोन तो बैट गोटे निर्णायक वार थिला जोडे कि एस्टैब्लिश कला कोन ब्रिटिश पावर आ कोन यूरोपियन पावर रहले बर्तमान 117 यूरोपियन पावर कि रहला ओनली इंग्लिश पावर रहला बर्तमान कोन हला ना बैटल ऑफ वांडी वाज एस्टैब्लिश्ड ब्रिटिश ईआईसी एज द पैरामाउंट यूरोपियन पावर इन इंडिया देखो बैटल ऑफ वांडी वाज एटले का वर्ड करी जे बैटल ऑफ वांडी वाज Battle of Wandi was established British EIC as the paramount European power paramount European power है in India बुझेला paramount European power in India you got it ना अरे बुझा पड़ला वन डे को नहीं बहुत क्वेश्चन पड़े को वार पर मान निज को पूरा फुली एस्टैब्लिश कर देले दैट इज व्हाट दैट इज दिस को वार करे वन डिवास बैटल ऑफ वन डिवास पर से माने पर को निज को पूरा संपूर्ण रूप से एस्टैब्लिश कर देले बैटल ऑफ वांडी वास पर से निज को संपूर्ण कोन एस्टैब्लिश कर देले तो बर्तमान कोन हला ना थर्ड कर्नाटक वार कोन हला कि बर्तमान हां एन हला टीटी ऑफ कर्नाटक वार अनुसार नाउ थर्ड कर्नाटक वार आज एंडेड now third Karnataka war ended now third Karnataka war
war was ended and it cleared the path for the establishment of British colonial rule in India. And it cleared କାରଣ ଆଉ କେହି ରହିଲେନି ଏମାନଙ୍କର ଇଏ ରହିଲେନି ଆଉ ମାନେ ଫରେନ୍ ପାୱାର କେହି ରହିଲେନି ଯେ ୟାଙ୍କ ସହିତ ଟକ୍କର ଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହିଁ ସୋଲୋ ହେଇଗଲା ସୋଲୋ ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଯିଏକି ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଇକି ରହିଲା ସୋ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର ଦ ପାଥ for the establishment of British colonial rule for the establishment of କଣ British colonial rule British colonial rule establishment of British colonial rule in India ବୁଝିଲା ତ ଏଇଟା ହେଲା ଥାର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର ଏମିତି ସରିଲା ଥାର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟିକର କୋଉ ଟ୍ରିଟିରେ ସେ ଏଣ୍ଡ ହେଲା ଆରେ କୋଉ ଟ୍ରିଟିରେ ଏଣ୍ଡ ହେଲା ହଁ which treaty Treaty of Paris देखो फर्स्ट कर्नाटक वार ट्रीटी ऑफ एक्स्ट्रा चापले सेकंड कर्नाटक वार ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी थर्ड कर्नाटक वार ट्रीटी ऑफ पेरिस बुझेला फर्स्ट कर्नाटक वार ट्रीटी ऑफ एक्स्ट्रा चापले सेकंड कर्नाटक वार ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी थर्ड कर्नाटक वार ट्रीटी ऑफ पेरिस क्लियर ହେଲା सर बहिरे सर बहिरे ଦେଇଛି ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस कौन ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस कौन बुझी पारली ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस आज्ञा ये तो पीस ट्रीटी ऑफ कौन अरे जो ट्रीटी बस सब पीस ट्रीटी ना एगुड़ा शांति शांति ट्रीटी गुड़ाक शांति चुक्ति स्वाक्षर करा ओडिया रे शांति शांति जो चुक्ति स्वाक्षर करागला पीस ट्रीटी गुड़ा ना सब गुड़ा पीस ट्रीटी कारण आप युद्ध बंद कर और तुम तुम नहीं जा आम आम नहीं गलु जहाँ जहाँ बंद बांध कर सब दैट इज पीस ट्रीटी इतना लिखा है को बाहर लिखुछ एटा पढुछ स्पेक्ट्रम हाँ स्पेक्ट्रम में लिखा है हला तो गला वर्तमान कर्नाटक वार तुम कंप्लीट है आम पढ़ले वर्तमान कमिंग ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया तापर आम देखिले कर्नाटक वार 1 कर्नाटक वार 2 कर्नाटक वार 3 नाउ कम टू पलासी वार हला बैटल ऑफ पलासी केते हेतला 1700 केते 1756 बा 57 हला बैटल ऑफ पलासी 1757 बा 56 1757 पर बैटल ऑफ पलासी हला अरे समस्त ठीक से सुना जाउची तो हां सर अच्छा वर्तमान में देखिबा देखो थर्ड कर्नाटक वार एंड हला वर्तमान में देखिया बैटल ऑफ पलासी 1756 बैटल ऑफ पलासी कौन हला कौन हला कौन लग रे सॉरी सर 57 ना 56 1757 से बहिरे ଅଛି 56 57 आ कोन 57 रे से फाइनली हेतिला जितिला जो समय 7 ईयर वार स्टार्ट हैला रे एठी एठी चलतिला कोन बैटल ऑफ पलासी बैटल ऑफ पलासी सरले हम बैटल ऑफ बक्सर को जिबा ना देखो बैटल ऑफ पलासी बैटल ऑफ पलासी बैटल ऑफ पलासी PLASSEY 1757 बैटल ऑफ पलासी देखो वर्तमान में बैकग्राउंड को जिबा बैकग्राउंड जो कोन है देखो तुम जानिछ औरंगजेब सेन मुर्शिद कुली खान टू बेंगल आज आज कोन देवान इन केते 1700 सी रे लेखो औरंगजेब माने कोन हला ना औरंगजेब सेंट मुर्शिद कुली खान टू बेंगल
to Bengal as Devan in as कौन as Diwan as Diwan in केतरे 1780 मसीह पठाइले है तो इनिशियल बेंगल कैपिटल वाज ढाका है इनिशियल जो बेंगल स्टार्टिंग रू इनिशियली कौन थिला इनिशियली बेंगल कैपिटल वाज ढाका बेंगल कैपिटल वाज कौन ग्रे कैपिटल से कौन ढाका थिला इनिशियली बेंगल कैपिटल वाज ढाका तापर कौन हला ना बेंगल कैपिटल वाज ढाका and Murshid Ali Khan transferred the capital from of Bengal from Dhaka to मुर्शिदाबाद तो ये प्रथम काम आसिक कौन कले ना कैपिटल को चेंज कले तो मुर्शिद कुली खान कौन कले कुली खान transferred the capital of Bengal the capital of Bengal okay the capital of Bengal from Dhaka to Murshidabad from Dhaka DHA Dhaka to कोडिग्रे to Murshidabad Dhaka to Murshidabad in 1704 Dhaka to Murshidabad okay Murshidabad in 1704 you got it अरे बुझा पड़ला अरे बुझा पड़ला ଆଜ୍ଞା तो कौन हेजी देखो तापर तो एमती कहानी घटी थिला ना प्रथम देख औरंगजेब जो रहिले हम मुगल एम्पायर रे देखिबा औरंगजेब हमर कोट को जायथिले औरंगजेब एडा हम मेडिएवल रे पढिबा औरंगजेब हमर थिले 1658 रु केते 1707 ये कौन एम्पायर थिले औरंगजेब को परे बहादुर शाह ऐसे एज खेल बहादुर शाह 1 ये रहले केते ना 1707 रु 1712 बहादुर शाह 1 पर ये जहंदर शाह रहले 1712 रु 1713 काने माने एते भलो एते नहोतला भितरे बहुत चेंज होतला हला ये सब कलहरे निज निज भीतर लिप्त रहते जहंदर शाह गला जहंदर पर फारूक सियार कौन करथिले कि मन अछि ना नहीं अरे कौन करथिले फारूक सियार कस्टम ड्यूटी यस 1713 रु ये थिले 1719 ये कौन करले ना कस्टम ड्यूटी की माफ कर देथिले 1717 रे फारूक सियार कौन करले ना फारूक सियार 1717 रे 1717 रे कौन हला ना 1717 रे कौन करले ना फारूक सियार कौन करले ना कंप्लीटली फारूक सियार कौन करले फारूक सियार कंप्लीटली वाइप्ड ऑफ कस्टम ड्यूटीज है ना कंप्लीटली तो टैक्स लागुतला पूरा बंद कर देले गले तो तुमको टैक्स दरकार है तांको सुने पे स्वागा गला कंप्लीटली वाइप्ड ऑफ कौन वाइप्ड ऑफ कस्टम ड्यूटीज बुझेला फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी कस्टम ड्यूटीज फॉर द कौन फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी तापर 1717 पुणी कौन है ना मुर्शिद अली खान वाज मेड द फर्स्ट नवाब ऑफ बेंगल 1717 पुणी कौन कर हला ना देखो 1717 रे मुर्शिद कुली खान से प्रथम दीवान थिले हला तापर प्रथम नवाब करले मुर्शिद कुली खान
was made the first Nawab of Bengal. Was made the first Nawab of Bengal. Nawab of Bengal. The first Nawab of Bengal. ବୁଝିଲା? ମାସୁଦି କୁଲି ଖାନ କଣ ଇଏ ନବାବ ହେଲା ପରେ ଇଏ ପୁଣି ଇଏ କଣ କରିବେ ଆଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ସେ ରେଭିନ୍ୟୁଟା ସେୟାର ହବ କାହା ସହିତ ଫାରୁକ ସାରଙ୍କ ସହିତ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟର ସହିତ ହେଲା ତେଣୁ କଣ ନା ମାସୁଦ କୁଲି ଖାନ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ମୁର୍ସିଦ କୁଲି ଖାନ କଣ ଥିଲା ନା ମୁର୍ସିଦ କୁଲି ଖାନ ୱାଜ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଲା ପରେ ଆମର କାମ ହେଲା କଣ ସୁଟ୍ କଣ କରିବେ share the revenue with Farooq Share. Share the revenue with Farooq Share. Farooq Share କିଏ ଥିଲେ? ଆରେ ଫାରୁକ ସାର୍ କଣ ଥିଲେ ଏଇ ସମୟରେ? ହାଁ ଫାରୁକ ସାର୍ କଣ ଥିଲେ? ଆରେ ଫାରୁକ ସାର୍ କଣ ଥିଲେ? କଣ ଫାରୁକ ସାର୍ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟର ଥିଲେ କଣ ଥିଲା? କଣ କି ଶୁଣୁନ କିରେ? ଆରେ ଶୁଣୁଛୁ ନା ପଳେଇ ଗଲେଣି ସବୁ? ରାଜକୁମାର ଅଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ମାସୁଦ କୁଲି ଖାନ ସେୟାର ଦ ରେଭିନ୍ୟୁ ୱିଥ୍ ଫାରୁକ ସାର୍ ଯେହେତୁ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲା ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ସୁବେଦାର ସମସ୍ତେ ରହୁଥିଲେ ମୁଁ କହିଥିଲା ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥିଲା ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟରର ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ଏଇଠି ନା ଯେତେବେଳେ ଫାରୁକ ସାରଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ଫାରୁକ ସାରଙ୍କ ପରେ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟର ଆହୁରି ୱିକ୍ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଏତେ ଭଲ କେହି ଆସିଲେନି ଫାରୁକ ସାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଥିଲା ଇଏ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରେ ଏତେ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟର ଆଉ କେହି ଭଲ ଆସିଲେନି ତେଣୁ ଆଫ୍ଟର ଫାରୁକ ସିଆର ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟର କଣ ହେଲା ବିକେମ୍ ୱିକ୍ ଆଫ୍ଟର ଫାରୁକ ସିଆର ହେଲା ଫାରୁକ ସିଆର ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟର ବିକେମ୍ ୱିକ୍ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟର became weak. मुगल एम्पायर became कौन करे weak. तो मुर्शिद कुली खान बर्तन कौन हला ना ୱିକ୍ ଥିଲା ତ ମୁର୍ସିଦ ୱିକ୍ ହେଇଗଲେ ତେଣୁ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏମାନଙ୍କର ହୋଲ୍ଡ କମିଲା ମାନେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଟୁ ହୋଲ୍ଡ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଲା କାରଣ ଯେହେତୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲିଡରସିପ୍ ୱିକ୍ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଲୋକ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇ ଉଠିଲେ ଯେମିତି ଆମେ ଗତ କ୍ଲାସରେ ବି ସେକେଣ୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର ବେଳକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ତମକୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତ ମୁର୍ସିଦ କୁଲି ଖାନ ରହିଲେ 1770 ରୁ 1727 ହେଲା ମୁର୍ସିଦ କୁଲି ଖାନ ରହିଲେ 1717 ରୁ 1727 ବୁଝିଲା 1727 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ ଆଙ୍କ ପରେ ସୁଜାଉଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ ଖାନ ହେଲା ଆଙ୍କ ପରେ ଆଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ତେଣୁ ହେଉଛି ସୁଜାଉଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ ଖାନ ସୁଜାଉଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ ଖାନ ସୁଜାଉଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ ଖାନ ହେଲା ଇଏ ହେଉଛି 1727 ରୁ 1700 କେତେ 1727 ରୁ 1739 ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ତାଙ୍କର ସନ୍ ଇନ୍ ଲ କାହାର କିରେ ଇଏ ଥିଲା ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ୟେସ୍ ମୁର୍ସିଦ କଲି ଖାନର ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ବା ତା ଜ୍ୱାଇଁ ଥିଲା ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏହି ସମୟରେ ଆଲିବର୍ଦ୍ଦି ଖାନ ଥିଲା 1727 1728 ମସିହାର କଥା ଆଲିବର୍ଦ୍ଦି ଖାନ କ'ଣ ଥିଲା ଆଙ୍କ ଆର୍ମିର ଜେନେରାଲ ଥିଲା ହେଲା ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ଲେଖ ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ କ'ଣ ହେଲା କଥା ନା ଏହି ସମୟରେ ଆଲିବର୍ଦ୍ଦି ଖାନ ଥିଲା ଜେନେରାଲ ମାନେ ତାଙ୍କ ସେନାପତି ଥିଲା କିଏ ସେ ଆଲିବର୍ଦ୍ଦି ଖାନ ଲେଖ ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ଆଲିବର୍ଦ୍ଦି ଖାନ was a able soldier in କେତେ 1728 କଥା କହୁଛି 28 ସବାର କଥା he was made the general ତାକୁ ମୋତେ ଏଜେସ ହେଲା ତାକୁ କ'ଣ ଜେନେରାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନେଇଦେଲେ he was made the general ବୁଝିଲା ତାପରେ 1733 ରେ in 1733 he was made the deputy subedar of Bihar
he was made he was made the deputy subedar of कौन के ऑफ बिहार बुझेला तेणु तापर जेला सुजाउद्दीन मोहम्मद खान जितेबाला कौन ये 1727 1739 रहा तेणु आफ्टर कौन है देख आफ्टर सुजाउद्दीन मोहम्मद खान आफ्टर सुजाउद्दीन मोहम्मद खान ये रहा के 1727 रु 1739 रहा आपर कौन है आपर किए है ना आपर है सरफराज खान बिकेम द नवाब सरफराज खान बिकेम द कौन नवाब ऑफ बेंगल किंतु से समय ये केते 1739 समय रहलानी 1739 रु 1739 अलीवर्दी खान कौन कला ना सरफराज खान को मारी की मारला इन द बैटल ऑफ गिरिया एटा बहुत एम पढ़े तुम एटा मन रखि था देखो अलीवर्दी खान किल्ड सरफराज खान अलीवर्दी खान किल्ड कागरे सरफराज खान अलीवर्दी खान किल्ड सरफराज खान in the battle of गिरिया in के 1740 and he became the Nawab of Bengal became the Nawab of Bengal he became the Nawab of Bengal है ना तो अलीवर्दी खान रहिला केते 1740 रु 1756 अलीवर्दी खान केते रहिला 1740 रु 1756 तो अलीवर्दी खान कौन रहिला ना अलीवर्दी खान रहिला 1740 रु 1756 आ परे आफ्टर हिम के हला तार ग्रैंडसन जान होची सिराज उद्दीन दौला हला और ग्रैंडसन ना होची सिराज उद्दीन दौला DAULAH सिराजुद्दीन दौला ये रहला 1756 रु 1757 कौन हला ना ये होता कौन ग्रैंडसन अलीवर्दी खान रो ग्रैंडसन ये कौन हला देखो ना ये बिकेम नवाब कौन से सिराजुद्दीन बिकेम नवाब एट केते एट द एज ऑफ 23 23 वर्ष रे ये नवाब बन जायतिला बुझी होची आ एई 1756 बेलको 1756 रु 1757 आ एई जो 1756 बेलको भी 1756 रे कोन हेतला यूरोप रे कोन हेतला रे यूरोप रे कोन 7 ईयर वार इन यूरोप 7 ईयर वार स्टार्ट हेतला 7 ईयर वार यूरोप रे 7 ईयर वार स्टार्ट हेतला तो कौन हला तो यही समय कौन यही समय कहानी ही कहूँ 1756 बा समय कथा 7 वार स्टार्ट हो गला से तो 7 वार स्टार्ट ला माने ये तो अटैक करले काहू अरे काहू अटैक करले फ्रेंच माने चंदननगर रे जो फ्रेंच रो फैक्ट्री से अटैक करले तो कौन कंडीशन को भला थिला से समय देखो से समय रे ये फोर्टिफिकेशन करी चलथिले के से ब्रिटिश लोक माने आ मराठा माने भी मझे बेंगल से अटैक करथिले तो ईस्ट इंडिया कंपनी माने कोन ए सब जिंस करी गुडा पैसा विभिन्न प्रकार कैंपेन करी ईस्ट इंडिया कंपनी आ कोन ना तब टैक्स फ्री हे जाइतिला फारूक साहब तम टैक्स फ्री कर देतिला माने ये ड्यूटी दक पड़िबनी कस्टम ड्यूटी दक पड़िबनी तो एमिति के तांकर सोने पे सुहागा पूरा गोल्डन पीरियड चलछला तांकर
पैसा प्रबल इनकम करथिले हैला आउ किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी कौन करथिला ना लॉट ऑफ मनी बनौथिला କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ କିଛି ଦଉନଥିଲା ଯେହେତୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ତାଙ୍କୁ ମାଫ ହେଇଯାଇଥିଲା ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସା ପ୍ରବଳ ବନଉଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉନି ତେଣୁ ସିରାଜ ଉଦ୍ଦୌଲା ସମସ୍ତେ ହିଁ ଗଲେ ନା ବୋଥ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ଡାକିକି କହିଲେ ଦେଖ ଭାଇମାନେ ଫର୍ଟିଫିକେସନ ବନ୍ଦ କର ଦୁର୍ଗ ଫୁର୍ଗ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଅ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହେଇଗଲା ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇନଥିଲ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଆଗରୁ ସେମାନେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନେ ବି ଦଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ଦଉନଥିଲା ଯେହେତୁ ଫାରୁକ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ମାଫ କରିଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଆଗରୁ ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଲେଖ ସବୁ ଟିକେ ଲେଖ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଫୋର୍ଟ देखो ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया में ब्रिटिश वर्तमान तो सब ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड बिल्डिंग फोर्ट स्टार्टेड बिल्डिंग कौन बिल्डिंग फोर्ट्स and Marathas was also attacking Bengal in between. Marathas also attacking Bengal in between. Okay. In between. पर ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ह्यूज प्रॉफिट करथिला हला ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईआईसी वाज मेकिंग ह्यूज मनी British EIC was making huge money but was not paying any taxes taxes कहीं दोनों लग रहे हाँ taxes कहीं दोनों फारूक सर फारूक सर तक मना को माने मैप कर देथिला तेणु सिराज उद्दौला कहला वर्तमान एमती चलबनी तो टैक्स दक पड़ो तेणु सिराज उद्दौला कौन कला ना फ्रेंच साइड को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सागे डकेला कहला वर्तमान जो फोर्टिफिकेशन जो करू चैनिंग सब बंद करो और टैक्स दक स्टार्ट करो तेणु सिराज उद्दौला कौन कहला सिराज उद्दौला देखो हम प्रोनाउंसिएशन कर दोसन कि देखो डी यू ए एल ए डुला सिराज उद्दौला asked both French and British East India Company, both French and British EIC, to stop fortification and pay taxes. To stop fortification and pay taxes. Fortification and pay taxes. तेणु ये सब कहले बर्तमान 45 बंद करो और कौन टैक्स देवा स्टार्ट करो तो फ्रेंच वाला मानिगले है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्टेड द प्रपोजल बट ब्रिटिश डिड नॉट तेणु ये जो प्रपोजल डाकिक मैंने कहले फ्रेंच मानिगला कि किए मानलानी ब्रिटिश मैंने मानले तो कौन है देख फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्टेड द प्रपोजल जो प्रपोजल रखिले किए से सिराज उद्दौला तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कौन कला ना एक्सेप्टेड इट फ्रेंच ईआईसी accepted the proposal accepted the proposal है बट किए मना गला कि but British EIC did not accept it बुझेला तो कौन है एक्सेप्ट कले सो सिराज उद्दौला कौन अटैक्ड फोर्ट विलियम्स तो आर परिणाम स्वरूप कौन सिराज उद्दौला है तो सिराज उद्दौला कौन कला ना उद्दौला डीएलएच सिराज उद्दौला अटैक्ड फोर्ट विलियम्स कोडी रे
अरे फोर्ट विलियम्स कोठी बेंगल रे बेंगल रे तेणु फोर्ट विलियम्स को किए अटाक कला सिराजुद्दौला अटाक कला कहुযাଉଛି ଯେ ଏଇ ସନ୍ଦର୍ଭରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 142 ଜଣ ଇଂଲିଶ ୱାଜ କେପ୍ଟ ଇନସାଇଡ୍ ଦ ଫୋର୍ଟ ଫୋର୍ଟ विलियम्स ହେଲା इन ए स्मॉल रूम ओनली 23 रिमेन्ड अलाइव बाकी सब डेथ ହେଇଗଲା ତ ଏଟାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ ଟ୍ରାଜେଡି ବି କୁହାଯାଏ এটা କଣ କୁହାଯାଏ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ ଟ୍ରାଜେଡି ବି କୁହାଯାଏ ଯେ 142 କୁହାଯାଏ ଯେ 142 ଇଂଲିଶ ୱାଜ କେପ୍ଟ ଇନସାଇଡ୍ ଦ ଫୋର୍ଟ विलियम्स 142 English was kept inside the Fort Williams. कौन लिख इन इन कहते हैं 142 English was kept inside the Fort William inside the Fort William inside the Fort William ହେଲା in a small room William in a कौन small room in a small room ହେଲା in a small room only 23 remained alive ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ବଞ୍ଚିତ ସକାଳ ପାଇଲା ବେଳକୁ ରେ only 23 remain alive remained alive କେତେ 23 ଜଣ ବଞ୍ଚିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏଟାକୁ କଣ କହନ୍ତି ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ ଟ୍ରାଜେଡି କୁହାଯାଏ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ब्लैक होल इंसिडेंट और ब्लैक होल ट्रेजेडी जहाँ कहब है बुझा पड़ा बुझा पड़ा रे अरे बर्तमान जे बुझा पड़ा कौन कौन है सब तो आप पुणी जा आप पुणी आम स्टार्ट करवा कमिंग क्लास रे पुणी कौन है देखिए ब्लैक होल ट्रेजेडी आज गला है तापर पुणी आगे को बढ़िया कौन पलासी वार केमती है बक्सर वार केमती है सब आगे मार चलिए कि सारीदे आज ये पलासी वार सारीदे अरे पलासी वार सारीदे अच्छा ठीक अच्छे तो ब्लैक होल इंसिडेंट घटला ब्लैक होल इंसिडेंट घटला ब्लैक होल इंसिडेंट है तो ब्लैक होल इंसिडेंट पर कौन है ना तो कौन है इतना एथरू जो किछटा जो समस्त तो बंद होगी नथले किछ लोग एस्केप कर जाइथिले जो माने एस्केप कर से जाके पहुंचले कोठी मद्रास जाके पहुंचले कौन है तापर घटना देखो तापर कौन डेवलपमेंट है केमिति ना जो एस्केप्ड ईस्ट इंडिया कंपनी रो जो माने एम्प्लॉय थिले जो माने खसी पळै थिले एस्केप्ड ईस्ट इंडिया कंपनी माने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्केप्ड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एम्प्लॉइज send the message to Colonel Robert Clive Madras जीतिले send the message to Colonel Robert Clive ହେଲା रॉबर्ट क्लाइव पाखु पठेले कौन मेसेज पठेले जे कोठी थिले मद्रास थिले सेतल बे तो कौन हला ना पठेले तेणु बर्तमान रॉबर्ट क्लाइव आसला 3000 सोल्जर धरिकी है रॉबर्ट क्लाइव केम टू बेंगल विथ केते रॉबर्ट क्लाइव बर्तमान मद्रास रे थिला आसला बर्तमान रॉबर्ट क्लाइव नाउ केम टू बेंगल विथ केते करे विथ 3000 सोल्जर बुझिला सोल्जर्स and Emmanuel Watson attacked Bengal port from sea ये आसिले कौन ये पटे आसिले 3000 सोल्जर धरिकी सेपटे and Emmanuel Watson सेपटे कौन जलपथर सेपटे हुगली साइड रो सेपटे अटैक कले हैला तो Emmanuel Watson attacked Bengal port from sea हैला Bengal port from sea attacked Bengal port from कोडी रे सी तो ये पर रॉबर्ट क्लाइव 3000 सोल्जर के आसिले स्थल पथरे सेपट से सी साइड रो सेपट पोर्ट पर सो अटैक कलानी हैला दीपर साइड रो अटैक हला बर्तमान तो एमिति हला सिराजुद्दौला कोन डिड नॉट फेस द रॉबर्ट क्लाइव तो ये प्रिपेयर नथिले
एमती हो बोली तो एमाने कौन कले ना स्टैंड कर पारे आगे। तेणु सिराजुद्दौला कौन कला सिराजुद्दौला डिड नॉट फेस रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला कौन कला कि डिड नॉट फेस फेस कर पाला डिड नॉट फेस कौन रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को ये कौन ना फेस कर पाला। तो ये समय कौन है ना एग्रीमेंट है आलीपुर बा आलीनगर पीस एग्रीमेंट है आर फलस्वरूप तमाम से हारीगले किए हारीगला बर्तमान अरे हारीगला किए से सिराजुद्दौला। तो बर्तमान कौन पीस एग्रीमेंट हम आलीपुर आलीपुर बा आलीनगर जो बर्तमान जो कौन कह कलकाता कह पुराना ना आलीपुर बा आलीनगर थिला आलीनगर पीस एग्रीमेंट है पीस एग्रीमेंट बा पीस ट्रीटी पीस एग्रीमेंट साइन है पीस एग्रीमेंट साइन है आर आलीपुर कौन ना प्रीवियस नेम ऑफ कलकाता नाव कलकाता लिखी दिया नाव कलकाता मैंने कोलकाता पूर्व ना आलीपुर आलीनगर थिला बर्तमान जो कलकाता। तो ये जो आलीपुर ट्रीटी रहा कौन कौन सब पॉइंट रहा देख आलीपुर ट्रीटी कौन कौन सब पॉइंट रहा आलीपुर बा आलीनगर ट्रीटी पॉइंट कौन रहा प्रथम पॉइंट रहा जे फोर्ट विलियम अगेन बिकेम ए ब्रिटिश प्रॉपर्टी बर्तमान फोर्ट विलियम से अख्तियार करते फेरे देवे फोर्ट विलियम अगेन बिकेम कौन के बिकेम ए ब्रिटिश प्रॉपर्टी तापर दुई रे लिखे दुई रे कौन ना ब्रिटिश डज नॉट हैव टू पे एनी बर्तमान टैक्स की देबे जो टैक्स एमि आगु दउनथि सेमि बर्तमान किसी टैक्स देबे ब्रिटिश does not have to pay any taxes any taxes British does not have to pay any taxes तापर कहला British were allowed to कोन mint their own coins आ गोटे पॉइंट रहला जे ब्रिटिश वर्तमान कोन दो ना British were allowed to mint their own coin बुझिला allowed to mint their own coin and Britishers were allowed to कोन कीप द आर्मी बर्तमान ब्रिटिश मान आर्मी भी रखी पारे तो ब्रिटिश were allowed to keep army British are allowed to keep army and Britishers are allowed to do fortification also तो मना करा होतला से बर्तमान भी करि पारिबे British were allowed to do fortification were allowed to do fortification were allowed to do fortification तो यही समय कौन थे जे मिर्जाफर से तो समय थिला कौन कमांडर इन चीफ थिला कार कि सिराजुद्दौला है लेख ये यही समय कौन होता देख ना यही समय मिर्जाफर थिला मिर्जाफर वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ सिराजुद्दौला मिर्जाफर was the commander in chief है तो कौन है ना मिर्जाफर वाज द कमांडर इन चीफ अब कार लगे सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला कौन थे कमांडर इन चीफ थिला तेणु बर्तमान कौन कला जे रॉबर्ट क्लाइव कहला मिर्जाफर कहला जे बर्तमान मु तोते कौन करी तोते नवाब करी है तो नवाब कर साइड करदेला बुझे कहला मु तोते नवाब करी तो ये बर्तमान आपको साइड करदेला ता साइड रे बर्तमान हेगला तो रॉबर्ट क्लाइव आसियोर मिर्जाफर रॉबर्ट क्लाइव यही कृत्रिम उद्धार करके जीती ना रॉबर्ट क्लाइव आसियोर Mirzafar to make him the Nawab
to make him the Nawab. To make him the Nawab. ତେଣୁ ତା ମନରେ ଲାଳସା ଆସିଲା, ସେ କଣ କରିକି ତା ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲା, ତ made him in his side and made ସେ ତାପଟିଆ କରିଦେଲା and made him to his side. ତେଣୁ ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଲାଳସା ଦେଖେଇକି ତା ନିଜ ପଟେ କରିଦେଲା। କିଏ ସେ? ଆରେ କିଏ ସେ କରିଦେଲା ନିଜ ପଟେ ତାକୁ? ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ହେଲା। ତ ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ନା, ଏଇ ସମୟରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କୁ ଯୋଉ 7 ଇୟର ୱାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା କୋଉଠି? କୋଉଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା? ୟୁରୋପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ କଣ, ବ୍ରିଟିଶ କଣ କଲା ନା, ଚାନ୍ଦନଗରକୁ ଆଟାକ୍ କଲା। ତ ବ୍ରିଟିଶ କଣ କରିଛି ଏଇ ସମୟରେ ନା, ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ଆଟାକ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଚାନ୍ଦନଗର ବେଙ୍ଗଲ ହେଲା। ବ୍ରିଟିଶର୍ସ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକ ଗୁଡା ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ବ୍ରିଟିଶ ଆଟାକ୍ କରିଛି କାହାକୁ ନା, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଚାନ୍ଦନଗର ହେଲା। ଚାନ୍ଦନଗର କୋଉଠି, ଯୋଉଟା କି ବେଙ୍ଗଲରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଙ୍ଗଲ ଏରିଆଟା। ତ ଏମାନେ କଣ କଲେ ନା, ଏଟା ଆଟାକ୍ କଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆଟାକ୍ କରାଗଲା, ଏଇଟା ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବୁଝିହଉଛି? ଏଇଟା ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି କିରେ? ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା କଣ କଲେ, ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା କେମ୍ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ 50,000 ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫୋର୍ସ ନେଇକି ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା। ସିରାଜଉଦ୍ଦିନ ଦୌଲା। ତ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା କଣ କଲେ ନା, କେମ୍ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ 50,000 ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫୋର୍ସ। ସେ କହିଲେ ବହୁତ ହେଇଗଲା ଆଙ୍କର ଖେଳ, ଆଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ କଣ ଏପାରି କିମ୍ବା ସେପାରିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଢ଼େଇ ହବ। ତ କେମ୍ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ 50,000 ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫୋର୍ସ, କେମ୍ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ 50,000 ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫୋର୍ସ ହେଲା। 50,000 ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫୋର୍ସ ସହିତ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଫୋର୍ସେସ୍ ଅଫ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ମେଟ୍ ୱିଥ୍ କଣ, ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ର ମାନ ମାତ୍ର 30,000 ଥିଲା, 30,000। କିନ୍ତୁ ହେଲେ କଣ ହବ, କମାଣ୍ଡର କାହା ପଟେ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? କମାଣ୍ଡର କାହା ପଟେ ହେଇଯାଇଛି? ଆଉ ନହେଲେ ତାଙ୍କର 50,000 ଥିଲା, ସେ ମାତ୍ର 3,000, ତଥାପି ହାରିଗଲେ, କାରଣ କମାଣ୍ଡର ତାଙ୍କ ପଟିଆ। ଏଇଭଳିଆ କରିକି ଇଂଲିଶ ଲୋକମାନେ କାରନାମା କରିକି ଜିତିଛନ୍ତି ସବୁ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ସମୟରେ। ନହେଲେ କଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର 50,000 ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫୋର୍ସ ଧରି ଆସିଲେ। ତ କଣ କଲା ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋର୍ସେସ୍ ଅଫ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା met with Robert Clive. କଣ, ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ହେଲା। ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ କଣ 3,000 ସୋଲଜର, ତାଙ୍କର 50,000 କଣ 3,000 ସୋଲଜର, 3,000 ସୋଲଜର ସେଟା ଆଟ ପଲାସି। କୋଉଠି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିରେ? ଆଟ ପଲାସି ହେଲା। ଏଟା କୋଉଠି? ପଲାସିଟା କୋଉଠି? ପଲାସି ଯୋଉ ଜାଗାଟା କୋଉଠି କିରେ? ପଲାସି ହଉଛି ଅନ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ରିଭର ଭାଗୀରଥ ନିୟର କୋଲକାତା। on the bank of river Bhagirath near କୋଲକାତା। ଏଟାକୁ ପଲାସି ସେ ଜାଗାଟା ନା, ସେଇଠି ହେଇଥିଲା ବୋଲି ତାକୁ କଣ କୁହାହଉଛି ନା, ପଲାସି ୱାର କୁହାହଉଛି। କିନ୍ତୁ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଯେହେତୁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧି ୟୁଜ୍ କରିଥିଲା, କମାଣ୍ଡରକୁ ତା ନିଜ ପଟେ କରିଦେଇଥିଲା, ତେଣୁ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ କଣ ୱିଥ୍ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ମିର୍ଜାଫର କିଲ୍ଡ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ କଣ ଛଳ କରିକି ମାରିଦେଲା କାହାକୁ? ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାକୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ନା, ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ୱିଥ୍ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ମିର୍ଜାଫର with the help of Mirzapur, with the help of कौन, help of Mirzapur killed Sirajuddaula। killed काहको? सिराजउद्दौला। सिराजउद्दौला कौन कला बर्तमान किल करदेला है ना। and कौन कला, and made Mirzapur the new Nawab of Bengal, and made Mirzapur
द न्यू नवाब, द न्यू नवाब बेंगल, द न्यू नवाब ऑफ बेंगल। बुझला। तो बर्तमान मिर्जाफर हेले सिना कोन लाइन को प्रथम होला कोन ना मिर्जाफर ना हेगला किंतु गोटे पपेट टाइप रो होला कारण ताकू जेतु इंग्लिश लोक माने बसै छथि त ताका हातरे नाचिला। तो बर्तमान कोन मिर्जाफर वर्कड अंडर द डायरेक्शन ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। मिर्जाफर वर्कड, मिर्जाफर वर्कड under the direction of Robert Clive, under the direction of Robert Clive, Robert Clive, okay, under the direction of Robert Clive. So after battle of Plassey, ହେଲା तो मिर्जाफर वर्तमान तांकर गोटे पपेट टाइप रे रहले तांका हातरे। तो आफ्टर बैटल ऑफ पलासी लेखो आफ्टर बैटल ऑफ पलासी ईस्ट इंडिया कंपनी गोटे कोन हेगला हां ट्रांसफर इनटू एज ए पॉलिटिकल पावर ହେଲା लेखो आफ्टर बैटल ऑफ पलासी, आफ्टर बैटल ऑफ पलासी, आफ्टर बैटल ऑफ पलासी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी transformed into a political power, transformed into a political power, into a कौन political power, political कौन रे political power। आज एतिकी थाउ ए पर्यंत हला। तो मिर्जाफर पर तापर कोन हला पुनी तापर उनी कंडीशन हो जे बैटल ऑफ बक्सर हो। तो बर्तमान बैटल ऑफ पलासी पर आसिले तो पलासी युद्ध रे मिर्जाफर विश्वासघातकता कथा आजिकल लोक कहना मिर्जाफरटा तू मिर्जाफरटा लोक आजिकल देखिबो लोक माने ये रे लोक माने कहउथिबे तू मिर्जाफरटा कि रे। तो ये कौन विश्वासघातकता करथिला तो से हारि जाइथिले सिराज उद्दौला हारि जाइथिला मारि भी देथिले सिटी। तेणु एमती पलासी वार बंद है सरला आम जो बक्सार वार हम 64 रे आपर मिर्जाफर पर कौन कौन है सब देखा कमिंग क्लास रे है। तो बर्तमान आज क्लास ये कौन वाइंड अप करवा आ कौन डाउट पचार अच्छी क्वेश्चन पचार मत पचार।